Good morning, all. Welcome to your English class. How are you all? I hope you all are doing good. So, students, in last class, we have completed with the chapter number 8, that is Blackie the Clever Crow, from your English reader textbook. And in today's class, we are going to discuss the question and answers and exercise related to that chapter. Okay. So first of all, I would like to mention about the difficult words from that chapter. Okay, so the difficult words are gently, thirsty. Remember the pronunciations of these words: gently, thirsty, recovered, perched, cowing, caught, thieves, creeping, flaming, awakened, valiant, distract, gathered, attacking, shooed, bandage. Okay, so you have to remember the spelling of all these words. Now next, word meaning. These are the new words and you should be knowing the meaning of these words. Kind hearted means caring. किसी की देखभाल करना उसको क्या बोलते हैं? काइंड हार्टेड. या किसी के बारे में परवाह करना उसको बोलते हैं काइंड हार्टेड. रिकवर्ड, गॉट बैक वंस स्ट्रेंथ. मतलब किसी भी हादसे के बाद या किसी भी इंजरी के बाद रिकवर करना या फिर से नॉर्मल होना उसको क्या बोलते हैं? रिकवर्ड. रेज्ड एन अलार्म, वॉर्न्ड ऑफ डेंजर. मतलब raised an alarm means warning somebody about that danger. किसी को भी सतर्क करना किसी दुर्घटना के बारे में. set fire to मतलब जला देना या burn करना. burn means set fire to means burn. distract, draws away one's attention. Okay, so trying to disturb someone from his work or trying to disturb someone's attention, that is known as distract. किसी को अपने काम से उसका ध्यान हटा देना, भटकाना उसका ध्यान, उसको बोलते हैं distract. perched, to sit on something. cowing, harsh cry of the crow. harsh cry of the crow. जो कौवा चिल्लाता है, चीखता है जोर जोर से, उसको क्या बोलते हैं? काउइंग. काय 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 करता है ना कौवा, उसको बोलते हैं काउइंग. अवेकन्ड, गॉट अप फ्रॉम स्लीप. वैलियंट, टू शो करेज. साहस दिखाना उसको बोलते हैं वैलियंट. पैक्ट, टू बाइट बाय बिक. चोंच से काटने को क्या बोलते हैं? पंछी जो अपने चोंच से किसी को काटता है तो उसको बोलते हैं पैक्ट. ओके, नाउ we will move on to the exercises. Comprehension. Under that, first exercise A, match the words with their meaning. So here you have to match the words with their meaning. Hide, column A, words. You have to match these words with the meaning which is given under the column B. Hide, hide means out of sight. हाइड मतलब छिपना. आउट ऑफ साइट का मतलब भी वैसे है, अपने नज़र से दूर चले जाने या नज़र में नहीं आना. आउट ऑफ साइट मतलब नज़र में नहीं आना. डिस्ट्रैक्ट मतलब टू डिस्टर्ब वंस अटेंशन. कॉ मतलब साउंड ऑफ क्रो. कॉ मतलब साउंड ऑफ क्रो. वैलियंट, वैलियंट मीन्स ब्रेव. रिकवर, रिकवर मीन्स टू गेट वेल अगेन. मतलब फिर से सुधार आना तबीयत में या अच्छे से तबीयत सुधर जाना, उसको क्या बोलते हैं? रिकवर. रेज एन अलार्म मतलब रेज एन अलार्म मतलब वॉर्न ऑफ डेंजर. किसी को भी खतरे से सतर्क करना उसको बोलते हैं रेज एन अलार्म. वोन आउट, वोन आउट मतलब tired. worn out means tired, थक जाना. Now exercise B. Complete the following sentences. First one,
तो हमें ये जो सेंटेंसेस दिए उनको पूरा करना है, कंप्लीट करना है. Kishanlal gave the crow some water because. Why Kishanlal gave water to the crow? We have to complete this sentence. So Kishanlal gave the crow some water because crow was thirsty. Okay, Kishanlal ने कौवे को पानी पिलाया. आगे का हमने पूरा करना है सेंटेंस. किशनलाल ने कौवे को पानी पिलाया क्योंकि कौवा बहुत ही ज़्यादा प्यासा था. सेकेंड, विलेजर्स ऑफन मेड फन ऑफ हिज न्यू फ्रेंड बिकॉज. तो इसका मतलब है गांव वाले लोग हमेशा किशनलाल के दोस्त का मजाक उड़ाते थे क्योंकि. आंसर इज इट वॉज अ लिटिल ब्लैक crow. It was a little black crow. Villagers often made fun of his new friend because it was a little black crow. गांव वाले लोग किशनलाल के नए दोस्त का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो एक छोटा सा काला कौवा था. थर्ड वन, the farmers could not see one thief because. इसका मतलब है जो किसान थे, किसानों ने एक चोर को देख नहीं पाए क्योंकि वो चोर जो अनाज कटकर बोरियों में भरा हुआ था उसके पीछे छिप गया था. सो इसको बताएंगे हम. द फार्मर्स कुड नॉट सी वन थीफ बिकॉज ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड द फ्रेशली कट क्रॉप्स. नाउ फोर्थ वन. Angry with Kishanlal, the thief decided to set fire to the crops on Kishanlal's farm. So that thief was angry with Kishanlal, and what he decided that we have to complete in this sentence. तो ये जो एक चोर था वो किशनलाल के ऊपर गुस्सा था और उसने क्या निर्णय लिया. उसने यह निर्णय लिया, वो हमें आगे लिखना है. सो एंग्री विथ किशनलाल द थीफ डिसाइडेड टू सेट फायर टू द क्रॉप्स ऑन किशनलाल्स फार्म. तो जो ये एक चोर किशनलाल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उसने ये तय किया या उसने ये निर्णय लिया कि वो किशनलाल के खेतों को आग लगा देगा. Fifth one. For his bravery, Blackie was rewarded with bravery medal. In this way, we have to complete fifth sentence. For his bravery, Blackie. So, इसके आगे आएगा was rewarded with bravery medal. तो ब्लैकी के साहस भरे कार्य के वजह से उसको एक ब्रेवरी वाला मेडल मिला, साहस दर्शाने वाला मेडल मिला, पारितोषिक मिला. ठीक है. नाउ एक्सरसाइज सी फ्रॉम द सेम चैप्टर. थिंक एंड आंसर. ओके. डू यू थिंक that Blackie was brave? Give reasons for your answer. So meaning of this question is, do you think that Blackie was a brave crow and why do you think so? We have to answer why do we think that Blackie was brave. तो इसमें पूछा है कि क्या आपको लगता है या आपके विचार में ब्लैकी एक ब्रेव क्रो है. ब्लैकी बहुत ही ज़्यादा ब्रेव लग रहा है आपको और इसके पीछे क्या रीज़न है. तो आंसर है यस, ब्लैकी वॉज ब्रेव बिकॉज विदाउट केयरिंग फॉर इट्स लाइफ ब्लैकी helped Kishanlal to catch those thieves. Okay. So meaning of this answer is, हाँ, हमें लगता है ब्लैकी एक बहादुर कौवा है, ब्रेव कौवा है क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह करे बिना किशनलाल की हेल्प करी उन चोरों को पकड़ने में. ओके. सो वी थिंक दैट ब्लैकी वॉज अ ब्रेव crow because without caring for his life he tried to catch those thieves along with Kishanlal.
Okay, this is the answer of that question. Now we will I have some additional questions from this chapter which I have written in my notebook, and I also want you to write those questions in your notebook only. Okay, so first question, answer the following questions. First question, how did Kishan Lal टेक केयर ऑफ द क्रो, मतलब है कि किशन लाल ने उस कौवे की कैसे देखभाल करी. तो आंसर है किशन लाल जेंटली पिक्ड क्रो अप and gave it some water. Then Kishan Lal made a little bed for the crow in a shoe box to rest. In this way he took care of the crow. तो किशन लाल ने कौवे की कैसे देखभाल करी. किशन लाल ने पहले तो उस कौवे को हल्के हाथ से उठाया, उसको पानी पिलाया, फिर उसको एक छोटा सा बेड बनाया जिसके अंदर वो रेस्ट कर सके. इस तरीके से उसने उस कौवे की देखभाल करी. ये उस क्वेश्चन का आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड हैपेंड विथ द थीव्स who had come to Kishan Lal's farm. So answer is Kishan Lal and his neighbors caught the thieves and took them to the police station. तो क्वेश्चन का मतलब है कि जो चोर किशन लाल के फार्म पर आए थे उनके साथ क्या हुआ. आंसर में लिखना है किशन लाल और उसके पड़ोसी ने उन चोरों को पकड़ा और उनको पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस के हवाले कर दिया. Question number 3. Why was the other thief angry with Kishan Lal, who was hiding behind freshly cut crops? तो क्वेश्चन का मतलब है जो एक चोर एक चोर जो अनाज की बोरियों के पीछे छुपा हुआ था, वो चोर किशन लाल के ऊपर गुस्सा क्यों था, इसकी क्या वजह थी, यह हमें आंसर में बताना है. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द अदर थीफ वॉज एंग्री विथ किशन लाल who was hiding behind freshly cut crops because Kishan Lal took his friends to the police station. तो वो जो चोर था जो अनाज की बोरियों के पीछे छुपा हुआ था, वो किशन लाल के ऊपर गुस्सा था क्योंकि किशन लाल ने उसके दोस्तों को पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया था या पुलिस के हवाले कर दिया था. इस वजह से वो किशन लाल के ऊपर गुस्सा था. ओके, सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस फ्रॉम द सेम चैप्टर, and in next class we will do the grammar exercises from the chapter number 8. If you have any doubt, any queries related to this chapter, you can ask me. Till then, thank you. Have a good day.